अस्सलाम वालेकुम आदाब। वन टीवी के उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। तेलंगाना हुकूमत ने अवामी हुक्मरानी का दिन शानदार अंदाज में मनाया। बीआरएस लीडरों की तबसरे पर आईटी वजीर श्रीधर बाबू का सख्त रद्द अमल। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात, 24 सीटों पर वोटिंग का अमल जारी। राहुल गांधी को धमकी देने पर बीजेपी रहनुमाओं के खिलाफ कांग्रेस की शिकायत। हारून यूसुफ का आपके ड्रामे पर सख्त बयान, अवाम को गुमराह करने और आइंदा असेंबली इंतखाबात में हमदर्दी हासिल करने और वोट लेने की नाकाम कोशिश। हमास के सरबराह यहया सिनवार का इजराइल के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का ऐलान। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर में अवामी हुक्मरानी का दिन शानदार अंदाज में मनाया। असल तकरीब बाग आम्मा नामपल्ली में मुनक्किद हुआ, जहाँ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कौमी परचम लहराया, पुलिस ने सलामी ली और खिताब किया। तकरीब से पहले वज़ीर आला रेवंत रेड्डी गन पार्क में तेलंगाना के शहदा को खराज अकीदत पेश किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 17 सितंबर को यौम अवामी हुक्मरानी के तौर पर मनाना एक सोचा समझा फैसला है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तेलंगाना मसला जिद्दोजहद को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करना बेवकूफ़ी है। రాచరిక వ్యవస్థను ముట్టడించి తెలంగాణ బానిస సంఖ్యలు తెంచిన చారిత్రాత్మక ఘట్టం 1948 సెప్టెంబర్ 17న ఇదే హైదరాబాదు గడ్డపై ఆవిష్కృతమైంది. ఒక ప్రాంతానికో, ఒక కులానికో, ఒక మతానికో వ్యతిరేకంగా జరిగిన పోరాటం కాదు ఇది. ఒక జాతి తన స్వేచ్ఛ కోసం, ఆత్మ గౌరవం కోసం రాచరిక పోకడలపై చేసిన తిరుగుబాటు. తెలంగాణ అంటే త్యాగం. ఈ త్యాగాలకు ఆద్యుడు దొడ్డి కొమరయ్య లాంటి ఎంతో మంది వీరులు తమ ప్రాణాలను ఒడ్డి సాయుధ పోరాటానికి ఊపిరి పోసిన గొప్ప వ్యక్తులు దొడ్డి కొమరయ్యతో పాటు ఎంతో మంది వీరులు. నాటి సాయుధ పోరాటంలో ఎందరో ప్రాణ త్యాగాలు చేశారు, జీవితాలు త్యాగం చేశారు. సర్వం కోల్పోయిన లక్ష్య సాధనలో వెనుకంజ వేయలేదు. ఆనాటి సాయుధ పోరాటంలో ప్రాణాలు వదిలిన అమర వీరులకు ఈ సందర్భంగా ఘనమైన నివాళిని అర్పిస్తున్నాను. 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలకు ప్రజాపాలన దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. సెప్టెంబర్ 17 తెలంగాణ ప్రస్థానంలో అత్యంత కీలకమైన రోజు. ఈ శుభదినాన్ని ఎలా నిర్వహించుకోవాలన్న విషయంలో ఇప్పటి వరకు భిన్న అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. కొందరు విలీన దినోత్సవం అని, కొందరు విమోచన దినోత్సవం అని సంబోధిస్తున్నారు. ప్రజాప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత సెప్టెంబర్ 17ను అధికారికంగా నిర్వహించాలని నిర్ణయించినాం. లోతైన ఆలోచన ప్రజాపాలన దినోత్సవంగా సెప్టెంబర్ 17న జరుపుకోవడం సముచితంగా ఉంటుందని మేమందరం భావించాం. సెప్టెంబర్ 17 1948 నాడు తెలంగాణ ప్రజలు నిజాం రాచరిక వ్యవస్థను కూలదోసి ప్రజాస్వామ్య ప్రస్థానానికి నాంది పలికారు. ఇది తెలంగాణ ప్రజల విజయం. ఇందులో రాజకీయాలకు తావు లేదు. రాజకీయ ప్రయోజన కోణంలో దీనిని చూడటం అవివేకం అవుతుంది. విలీనమని ఒకరు, విమోచనమని మరొకరు స్వప్రయోజనాల కోసం నాటి అమరుల త్యాగాలను పలుచన చేసేలా ప్రవర్తించడం సరికాదని ప్రజాప్రభుత్వం భావిస్తుంది. అందుకే ఈ శుభదినానికి ప్రజా కోణాన్ని జోడిస్తూ ప్రజాపాలన దినోత్సవంగా నామకరణం చేశాం.
ప్రజా ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం 4 కోట్ల ప్రజల యొక్క ఆకాంక్ష, వారి ఆలోచన, నాటి తెలంగాణ సాయుధ పోరాట స్ఫూర్తి. ఈ నిర్ణయాన్ని ఎవరైనా తప్పుపడితే వారికి స్వార్థ ప్రయోజనమే అవుతుంది తప్ప ప్రజాహితం కాబోదు. ఇందులో మా స్వార్థం లేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసమో మా వ్యక్తిగత ఆకాంక్షలతో చేసిన నిర్ణయమో కాదు. మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే తెలంగాణ భౌగోళిక స్వరూపం బిగించిన పిడికిలి మాదిరిగా ఉంటుంది. పిడికిలి పోరాటానికి సింబల్. అంతేకాదు 5 వేళ్లు బిగిస్తే పిడికిలి. తెలంగాణలో అన్ని జాతులు, అన్ని కులాలు, మతాలు కలిసికట్టుగా ఉంటాయన్న సందేశం ఇందులో ఇమిడి ఉంది. ఈ ఐక్యతను, ఈ సమైక్యతను దెబ్బతీసే విధంగా సెప్టెంబర్ 17ను కొందరు వివాదాస్పదం చేసే ప్రయత్నం క్షమించరాని విషయం. బిగించిన పిడికిలి కొండలనైనా పిండి చేయగలదు. ఐక్యంగా సమైక్యంగా ఉండే తెలంగాణకు బిగించిన పిడికిలి ఉన్నంత శక్తి ఉంది. ఇది 4 కోట్ల ప్రజల పిడికిలి. ఇది ఎప్పటికీ मंगल को कलेक्ट्रेट में प्रजा पालना दिवस भरपूर अंदाज में मनाया गया। इस मौके पर जिला इंतजामिया ने शानदार इंतजामात किए थे। पंचायत राज और दही तरक्की के वजीर सीता अक्का ने बतौर मेहमान खुसूसी कौमी परचम लहराया। बाद में पुलिस की सलामी ली। वजीर मौसूफ ने मौजूद मुअज़्ज़िज़ीन और ओहदेदारों को मुबारकबाद दी। खिताब करते हुए उन्होंने 17 सितंबर और यौम प्रजा पालना की अहमियत पर रोशनी डाली। కృషి పట్టుదల సేవా దృక్పథం ఉంటే తప్ప మనం అభివృద్ధి పదంలోకి వెళ్ళలేము. అదే విధంగా మండలాల్లో కూడా మీ ఆధీనంలో మీ శాఖలలో ఉన్నటువంటి అధికారులు మొన్న ఫ్లడ్స్లలో ఎవరెవరైతే యాక్టివ్గా పనిచేసిండ్రో వారిని కూడా మండలాల వారీగా మరి గౌరవించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కష్టపడ్డటువంటి వాళ్ళ గుర్తింపు తప్పకుండా ఉండాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో కలెక్టర్ గారు నేను అనుకొని మరి రాష్ట్రంలో వరదలు ఎక్కడొచ్చినా మన ములుగులో వరదలు వచ్చినట్టుగానే భావిస్తూ దాదాపు 2 నెలలు 3 నెలల నుంచి మేము నిరంతరం అలర్ట్గా ఉండడం, అదేవిధంగా ఎప్పటికప్పుడు ప్రణాళికలు చేసుకుంటూ ఈసారి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా విజయవంతంగా ఈ వరద కాలం నుంచి మన ములుగు జిల్లాను, ములుగు నియోజకవర్గాన్ని కాపాడుకోవడంలో జిల్లా ఎంత IT और सनत के वजीर श्रीधर बाबू ने BRS कायदीन के उस बयान पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया है जिसमें उन्होंने सेक्रेटेरिएट से आनजहानी राजीव गांधी का मुजस्समा हटाने की बात कही थी। मीडिया से बातचीत करते हुए श्रीधर बाबू ने इल्जाम लगाया कि ये इकदाम सिर्फ वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह को खुश करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से इस मामले पर गौर करने की अपील करते हुए कहा है कि राजीव गांधी को तकनीकी इनकलाब का क्रेडिट दिया जाता है और उनकी क़यादत में 18 साल के नौजवानों को वोट का हक मिला। सोनिया गांधी के हवाले से उन्होंने बताया कि उन्होंने तेलंगाना की ख्वाहिशात को पूरा करने में अहम किरदार अदा किया है। श्रीधर बाबू ने यह भी वाज़ेह किया है कि जो लोग मुल्क के लिए कुर्बानी देने के माना नहीं समझते वही मुजस्समे को मुतनाज़ा बना रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि तेलंगाना तल्ली का नया मुजस्समा भी नस्ब किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ख़वातीन के लिए मुफ्त सफ़र और कर्ज की माफ़ी की कोशिशों का जिक्र करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रियासत के मुआशी वसाइल को अच्छी तरह समझते हैं और तेलंगाना की मैशियत में शराकत नुमाया है। तेलंगाना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों और सड़क की हिफाजत के बढ़ते हुए खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2024 तक 6,916 ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल कर दिए हैं। ये मुअत्तलियां ओवर स्पीडिंग, नशे में ड्राइविंग, माल बरदार गाड़ियों में मुसाफिरों की नकल हमल, गलत सम्त में ड्राइविंग, ओवरलोडिंग जैसे संगीन जुराइम की बुनियाद पर की गई है। रियासत के सड़कों की हिफाजत के इदाद-ओ-शुमार की एक तशवीश तस्वीर पेश करते हुए जो सख्त नफाज की ज़रूरत को वाज़ेह करती है। पिछले 5 सालों में तेलंगाना में मोहलिक हादसात के नतीजे में 21,745 मर्द और 13,308 खवातीन अपनी जान से हाथ धो बैठी है, जिसका मतलब यह है कि रोजाना औसतन 20 अफराद हलाक हो रहे हैं। मुतासिरा अफराद की अक्सरियत की उम्र 25 से 45 साल के दरमियान है, जो कि काम करने वाले की उम्र के लोगों पर इस अलमनाक असर की निशानदही करती है।
आज असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में 24 सीटों पर वोटिंग का अमल जारी है। इस मौके पर कांग्रेस के लीडर और कायदे हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी और पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने रियासत के लोगों से बड़ी तादाद में वोट देने की अपील की है। राहुल गांधी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग अपनी आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, रोजगार के मौक़े पैदा करने, ख़वातीन को मजबूत करने और रियासत की खुशहाली के लिए बड़ी तादाद में वोट डालें। इसी तरह कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राय दहिंदगान से अपील की है कि वो मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके में अमन, इस्तेहकाम, इंसाफ और तरक्की के लिए भरपूर वोट दें। कश्मीर में बनेगी। जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो अमन चाहती है, चैन चाहती है, सुख चैन चाहती है और यहाँ के विकास की रणनीति को अपनाएगी और भारतीय जनता पार्टी की जो है वो जीत जो है वो निश्चित है। आतंकवाद बहुत बड़ा मुद्दा है और काफी हद तक आतंकवाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया है, लेकिन ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जो हैं इन्होंने हमेशा समाज को तोड़ने की बातें की, समाज को बांटने की बातें की है और आगे जो है इनका पत्ता साफ होने वाला है और आतंकवाद भी वे दिए की तरह है जो बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर आतंकवाद मुक्त होगा। यहाँ पे हर काम जो है कांग्रेस पार्टी ने किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का कोई काम आपको बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में नजर मेरी तरफ से वोटर्स से जहां भी आज वोट डाले जा रहे हैं फर्स्ट फेज में कि निकल आए, वोट अपना इस्तेमाल कर लें, वोट डालें। ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, पूरे अवाम के लिए। अमन व अमान कायम रखना बहुत जरूरी है और इसमें कौन जीते कौन हारे वो अवाम आपने ही फैसला करना है, अवाम ने फैसला करना है। Pulwama has been stigmatized. This is an election for us to reclaim the image of Pulwama, the youth of Pulwama, the people of Pulwama, and we are optimistic, we are hopeful with the response of campaign. So we want to, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, JP नड्डा और कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में बुध को वोटरों से बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकलने की अपील की है। यूनियन टेरिटरी में 90 असेंबली सीटों के लिए 3 मरहलों में इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे, जिनमें से पहले मरहले की तहत 24 सीटों पर आज वोटिंग जारी है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के आगाज के साथ ही मैं तमाम हलकों के लोगों से अपील करता हूं कि वो बड़ी तादाद में वोट डालें और जमहूरियत के त्यौहार को मजबूत करे। वोटर्स अपने हक राय दही इस्तेमाल करें। लोकसभा में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी को धमकी देने के मामले में कांग्रेस के खजांची अजय माकन ने बीजेपी के कई रहनुमाओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस मौके पर अजय माकन के साथ कांग्रेस के दीगर लीडरान भी मौजूद थे। माकन ने जिन रहनुमाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है उनमें तरविंद सिंह मारवा, रवनीत बट्टू, रघुराज सिंह और संजय गैकवाड शामिल है। उन्होंने कहा है कि यह रहनुमा, जिनमें से एक दिल्ली का बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली, एक शिवसेना शिंदे के रुकन, एक मरकजी वजीर और एक यूपी के वजीर हैं, ने राहुल गांधी के खिलाफ तशवीशनाक बयानात दिए हैं। अजय माकन ने इन रहनुमाओं के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी खौफजदा नहीं है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली में पिछले सप्ताह राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी एक तरीके से दिया था, जब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी संभल जाओ, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ। हम सब लोग जानते हैं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने अपनी छाती पे 34 गोलियां खाई थी और शहीद हुई थी। हम सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी के पिता, जिन्होंने शांति वार्ता शुरुआत करी, इस वजह से उनके जिस्म के चीथड़े उड़ा दिए गए। आप उस व्यक्ति को, जिसके परिवार में, जिसके पिता ने, जिसकी दादी ने शहादत देश के लिए दी, आप उनके बारे में ऐसा कहते हो कि आप संभल जाओ, आप बोलो मत कुछ भी, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ है। भारत के अंदर राजनीति इससे ज़्यादा निचले स्तर पे नहीं गिर सकती। चलिए, एक व्यक्ति ने कह दिया, हो सकता है उसके अपने निजी विचार हो सकता है कि वो अपने आकाओं को खुश करना चाह रहा हो, लेकिन ना तो उसके आकाओं ने, ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको चुप कराने की कोशिश करी, ना उसकी भर्त्सना करी। उसके 2-3 दिन के बाद में भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी दल ने, उसके एक नेता ने, विधायक ने ये कह दिया कि राहुल गांधी जी की जो जुबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपए मिलेंगे। क्या ये राजनीति है? आपको जिसकी बात पसंद नहीं, आपको जिसकी आवाज़ पसंद नहीं, आपको इसलिए उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए उसकी आवाज़ पसंद नहीं क्योंकि वो अक़लियत की बात करते हैं, माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं,
दलितों की बात करते हैं, पिछड़े वर्गों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, संविधान को बचाने की मांग करते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि उनकी जुबान काट लेगा जो उसको 11 लाख मिलेंगे। आपको उसकी आवाज़, उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए आप कहते हैं कि तुम्हारा भी वही हाल होगा उसी तरीके से जो तुम्हारी दादी का हुआ था। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ये कांग्रेस पार्टी है और ये राहुल गांधी है। जान से मारने की धमकी से हम लोग किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पे कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता तैयार हैं अपने छाती आगे करके, जान से मारना है हमें मारिए, लेकिन हमारे नेता की आवाज़ कभी बंद नहीं होगी, हमारे नेता कभी चुप नहीं होंगे। इसी प्रकार से हमारे नेता दलितों के, पिछड़े वर्गों के, अक़लियतों के और कुचले वर्गों के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए इन सब की आवाज़ हमारे नेता उठाते रहेंगे। ये आज हम कहना चाहते हैं और सरकार को भी ये कहना चाहते हैं कि वो संभल जाए, अपने लोगों को संभालें, अपने लोगों को बचाएं, उनको बताएं। और ये कोई एक जगह दो जगह नहीं है। जो व्यक्ति इनको पसंद नहीं आता उसको ये खट से उसको कहते हैं कि ये आतंकवादी है, उसको आतंकवादी ब्रांड कर देते हैं। एक मंत्री भारत सरकार का इसलिए उनको राहुल गांधी जी को आतंकवादी ब्रांड कर दे क्योंकि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो उनको पसंद नहीं। तो ये कहाँ की राजनीति है? एक नेता कह दे कि इनको मार दिया जाए जान से, इनकी जुबान काट ली जाए क्योंकि उनकी बात उनको पसंद नहीं आ रही। तो इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट करी है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए। आज सरे चौराहे पे बीच में पब्लिक मीटिंग के अंदर अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि इनका वही हाल होगा जो इनकी दादी का है, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बड़ा सीधे के सीधे जान से मारने की धमकी कानूनन तौर के ऊपर नहीं हो सकती। इसलिए हम पुलिस को कह रहे हैं कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और इनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की आपकी शिकायत है, नाम बता दीजिए। हम लोगों ने एनेक्सेस दिए हैं और 4 लोगों के खिलाफ में, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर एक उनके पूर्व दिल्ली के जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, शिवसेना के जो महाराष्ट्र के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके बारे में, केंद्र सरकार के अंदर पंजाब से पहले और अब राजस्थान से आए हुए सांसद मंत्री हैं उनके बारे में, और एक यूपी से मिनिस्टर हैं जिन्होंने परसों उन्होंने भी राहुल जी के खिलाफ में बोला है। ये चारों के खिलाफ में हम लोगों ने बाय नेम हमने कहा है कि इनके खिलाफ में FIR होनी चाहिए। मुकदमा भी दर्ज हुआ था, कार्रवाई। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि इस तरीके की टिप्पणी राहुल गांधी जी के खिलाफ में जो करी गई, आज तक के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये अप्रत्याशित है और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का फर्ज बनता है कि राजनीति की गरिमा को बना करके रखें। ये उनके नेताओं का फर्ज बनता है कि राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर वायलेंस को किसी भी तरीके से बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। और जान से मारने की धमकी जिस तरीके से खुलेआम दी जा रही है, जुबान काटने की धमकी जिस तरीके से दी जा रही है, आपको कोई बात पसंद नहीं तो आपको किसी की आवाज़, बात पसंद नहीं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर राजीव भवन में मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली हुकूमत के साबिक वजीर हारून यूसुफ ने आपके हालिया इक़दाम पर तनकीद की। उन्होंने कहा, 3 दिन से चल रहे आपके ड्रामे में ईमानदारी की तारीफ के अरविंद केजरीवाल को भगवान राम की तरह बावकार मर्द करार देते हुए मुहिम चलाई जा रही है। ये दिल्ली के आवाम को गुमराह करने और आइंदा असेंबली इंतखाबों में हमदर्दी हासिल करने के वोट हासिल करने की नाकाम कोशिश है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हारून यूसुफ के साथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन और साबिक रुकन असेंबली अनिल भारद्वाज और साबिक रुकन असेंबली हरिशंकर गुप्ता भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमें क्लीन चिट दे दी। अगर क्लीन चिट दे दी थी तो क्या जरूरत थी कि आपके ऊपर इतने प्रतिबंध लगाए? और केजरीवाल जी ने सोचा कि ये एक बड़ा सुनहरा मौका है। आज बहुत सारे साथी हमारे पुराने, जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, वो अच्छे से जानते हैं कि 2014 में क्या नाटक हुआ था। नाटक ये हुआ था कि कांग्रेस पार्टी ने समर्थन इसलिए दिया था क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि हम दिल्ली के अंदर ये 90 पॉइंट हैं, इनके ऊपर काम करेंगे, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पॉल्यूशन, ट्रांसपोर्ट, तमाम विभागों के बारे में उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी बातें की। और उस समय जो हमने समर्थन दिया था, मैं CLP का लीडर होता था कांग्रेस पार्टी,
तो हमने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि अगर ये सारे काम ये कर सकते हैं तो हम उनको पूरी समर्थन देंगे। लेकिन केजरीवाल जी भागे क्यों, इसका आपको शायद सबको याद होगा। भागे इसलिए थे कि जन लोकपाल का बहाना लिया गया कि जन लोकपाल पे हम अपोज कर रहे हैं। आज मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ कि जब असेंबली का सेशन था जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, तो मैं और दिल्ली के पूर्व पीसीसी प्रेसिडेंट को मनीष सिसोदिया जी बुला के लेके गए और जो बाहर हमारी लॉबी थी उसमें केजरीवाल जी खड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि जो सब्सिडी वाला जो पोर्शन है उसको पहले क्लियर करा, जिस पर मैंने कहा केजरीवाल जी आपका एजेंडा नंबर 1 जन लोकपाल है। तो केजरीवाल जी का ये कहना था कि जन लोकपाल लोकपाल छोड़ो, आप बाद में जाने दो, आप सब्सिडी वाला जो हमारा बिल है उसको क्लियर करो। तो उस पर हमने ये कहा था कि अगर कुछ भी होगा तो बाद में एलजी से कह के करा सकते हैं, लेकिन आप जन लोकपाल पर बहस शुरू करवाइए। और कांग्रेस पार्टी का संपूर्ण समर्थन जन लोकपाल पर था। आज कहाँ है जन लोकपाल? आज 11 साल हो गए शिक्षे को, आज तक जन लोकपाल नहीं आया। ईमानदारी की बात करने वाले जानते थे कि हमको तो बेईमानी करनी है दिल्ली के अंदर, और जिस तरीके से अपने आप को ईमानदारी के खुद ही सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं और सारे आम आदमी पार्टी के नेता, ऐसा लगता है जैसे स्कूल में कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, सारे आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते हैं। लेकिन सच्चाई है कि अरविंद केजरीवाल जी अच्छे से जानते हैं कि ये वो दिल्ली है तो भूलती नहीं है। दिल्ली के ही लोगों ने हमको 3 मरतबा सरकार में बैठाया और हमने दिल्ली की तस्वीर बदली। वही अरविंद केजरीवाल जो वैगन आर में घुमा करते थे और गरीबी की बात करते थे, अपने शर्ट साइज के 4 नंबर 11 साइज पहन के और फटा हुआ सैंडल पहन के लोगों को ये बताने की कोशिश करते थे कि मैं आप लोगों में से हूँ। लेकिन धीरे धीरे वो नकाब उतरा और ग्लॉस्टर जैसी गाड़ी किया कि 50 लाख रुपए की गाड़ी है वो, जिसमें अरविंद केजरीवाल चलते हैं। और एक काफिला है जिसको कहा तक मैं न सिक्योरिटी लूंगा न बंगला लूंगा, सिक्योरिटी 4 गाड़ियां और चलती हैं। इसके अलावा शीश महल बनाया गया और शीश महल का दिल्ली के गरीब जनता का मजाक उड़ाने के बराबर। मैं समझता हूँ कि गरीब लोगों के मुंह पर तमाचा है, जो झुकी झोपड़ी अनथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं, जो आज कीचड़ में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनको जवाब देने के लिए केजरीवाल जी का एक नया, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा डायरेक्टर है, कौन सा स्क्रिप्ट राइटर है जो इतने अच्छे अच्छे डायलॉग उनको लिख कर दे रहा है। सच्चाई ये है कि जो भ्रष्टाचार दिल्ली में हुआ है पिछले 11 साल, वो तो कहते थे कि कॉर्पोरेशन हमें काम, कॉर्पोरेशन वाले जो है बीजेपी के हमें काम नहीं करने दे रहे। आज तो 2 साल से आपकी कॉर्पोरेशन है। दिल्ली की जो गंदगी है उसका हाल क्या है? उस सबसे पर्दा डालने के लिए जैसे मोदी जी करते हैं ना कि जब डूबी वाले आते हैं और बाहर का कोई फॉरेन डेलीगेशन आता है तो पर्दे डाल देते हैं, इसी तरीके से उस तमाम ऐशो आराम पे पर्दे डालने के लिए अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 15 दिन के अंदर मैं अपना निवास खाली कर दूंगा, सिक्योरिटी छोड़ दूंगा। मैं ये दोबारा वो नाटक करने के चक्कर में है। लेकिन केजरीवाल जी, ये दिल्ली की जनता जो है बड़ी बाशऊर है। दिल्ली की जनता समझती है आपकी रक्षाओं को और अब कैसे आपके झांके में नहीं आने वाले। ये चाहते हैं कि दोबारा वो छोटी गाड़ी, एक इनके मंत्री है वो नहरों में घुमा करते थे, आज देखिए शानदार इनोवा गाड़ी जो है जो तकरीबन 32-33 लाख की है उसमें घूम रहे। अरे कहाँ गए वो वैगन आर, कहाँ गए वो ई रिक्शा है, कहाँ गए वो 3 व्हीलर जहाँ आपके एमएलए कूद कर आते थे विधानसभा के अंदर।
हमास के सरबराह यहया सिनवार ने कहा है कि इसराइल के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए वसाइल मौजूद हैं। खबर रसा एजेंसी AFP के मुताबिक यहया सिनवार ने यमनी हुसी इत्तेहादियों को एक खत में लिखा कि यह तवील जंग लड़ने के लिए हमने खुद को तैयार कर लिया है। उन्होंने अपने खत में खबरदार किया है कि गाजा और दीगर इलाकों बशमोल लिबनान और इराक में ईरान की हिमायत याफ्ता ग्रुप दुश्मन की सियासी अज़्म को तोड़ देंगे। ये बयान इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद सिनवार के सरबराह बनने के बाद आया है, जिससे हमास के अज़्म और जंगी तैयारियों का इजहार होता है। लिबनान के सिक्योरिटी जराये ने दावा किया है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद ने हिजबुल्लाह के लिए ताइवान में तैयार करदा 5000 पेजर में धमाके खेज मवाद नस्ब किया था। बरतानवी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक एक सीनियर सिक्योरिटी जराये ने बताया कि हिजबुल्लाह ने ये पेजर ताइवान की कंपनी गोल्ड ओपोलो से ऑर्डर किए थे, जो मौसम बहार में लिबनान में लाए गए थे। हिजबुल्लाह के सैकड़ों अरकान के जेरे इस्तेमाल ये पेजर मंगल को लिबनान और शाम में तकरीबन बैक वक्त फट गए, जिसके नतीजे में एक 8 साल बच्ची समेत कम अज कम 9 अफराद हलाक और 3000 से करीब जख्मी हो गए हैं, जिसमें लिबनान में ईरान के सफीर भी शामिल है। अहदेदारों ने इस रिमोट हमले के लिए इसराइल को मोरिद इल्जाम ठहराया है। हिजबुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का अज़्म जाहिर किया है, ताहम इजरायली फौज ने इस धमाकों पर तबसरा करने से इनकार कर दिया है। किसी जराये का कहना है कि यह मंसूबा कई माह पहले तैयार किया गया था। आखिर में हेडलाइंस फिर। तेलंगाना हुकूमत ने अवामी हुक्मरानी का दिन शानदार अंदाज में मनाया। BRS लीडरों की तबसरे पर IT वजीर श्रीधर बाबू का सख्त रद्द अमल। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात, 24 सीटों पर वोटिंग का अमल जारी। राहुल गांधी को धमकी देने पर BJP रहनुमाओं के खिलाफ कांग्रेस की शिकायत। हारून यूसुफ का आपके ड्रामे पर सख्त बयान, अवाम को गुमराह करने और आइंदा असेंबली इंतखाबात में हमदर्दी हासिल करने और वोट लेने की नाकाम कोशिश। हमास के सरबराह यहया सिनवार का इसराइल के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का ऐलान। 1TV उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।